गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रजेश सिंह, सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी हिस्ट्री क्लास के साथ। डियर स्टूडेंट्स, सिविक्स में हमने चैप्टर्स को कवर किया और लगभग सिलेबस ऑफ सिविक्स हैज बीन एंडेड। I will just take the revision, personal doubts on the fixed regular interval, but major topics of the history I will take the India after independence, including with women's caste system and development. Actually, these are two chapters. These are two chapters in NCERT content, but the combination of both chapter and the contents of both chapter, language of both the chapter, you will get absolute similar. So finally I took decision, I will connect these two chapters in one platform, means India after independence. After that I will certainly talk about the development of the women's caste system, what were the barriers, what were the obstacles in India after getting the independence. Especially I will talk about the women development before 1947, after 1947. So these were the particular topics of the Indian movement. I will talk here India after independence. 1947 में भारत को आजादी मिली, बिल्कुल क्लियर है ये। 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। 1857 से लेकर के 1947 तक I analyzed especially what were the barriers, what were the problems, what were the problems had been faced by our Indian national movement to achieve this target. This has been done. I have focused extremely 1857 to 1947, a lot of consequences, a lot of events, and definitely moving in next class this particular topic will be on. You will study more and more in coming classes also. I today take the topic India after independence. India after independence. After independence. Independence. Dear, you know, India got freedom 1947, 15 August 1947. India got freedom. India got freedom. This particular topic is totally based what events, what particular challenges had been faced after getting independence. भारत आजाद हुआ, एक इवेंट आपका था फ्रॉम 1857 से लेकर 1947 तक। I have discussed hugely from 1857 1947 what kind of problems, what kind of tragedies and what kind of struggle, what kind of dedications, what of sacrifices had been exercised by our Indian national government here. और आप समझते हैं कि 1857 से लेकर के 1947 तक की जर्नी कितनी पेनफुल थी। अगर आप एक स्टेप उठा को देखेंगे तो लगातार आपको इस बात का एहसास होगा, you can realize what was the painful events of from slightly discussed from 15 August 1947 to touch our destination. एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बैक साइड की हिस्ट्री को आप देख चुके हैं और यहाँ हम चर्चा करेंगे तो what were the major challenges, what were the major challenges after getting independence of the India. Major challenges of independence India. Independence India. भारत की आजादी के बाद मुख्य रूप से क्या चुनौतियां आई, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना भारतीयों को करना पड़ा, इस पर हम ब्रीफ में थोड़ा देखेंगे। बिकॉज दिस चैप्टर, this topic is not going to be ended. This must be continued till the 12th standard. 12वीं क्लास तक इस टॉपिक से आप जुड़े रहेंगे and you will conduct a lot of information, huge knowledge analyzed
but in particular your syllabus, your course, whatever the matter has been given, I would like to discuss in exploratory form. Major challenges of India. First of all, undivided India. Undivided India. First challenge goes to you. Undivided India. Undivided India. You know, India got here 1947. भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि भारत की एकता को सुनिश्चित किया जाए. The unity of India must be constantly. There is no question mark against the unity of India because national मूवमेंट के जितने हमारे लीडर्स थे, भारत को आजाद होने के बाद एक चीज पर बिल्कुल एक ओपिनियन था कि किसी भी कीमत पर, धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर या जात के आधार पर भारत की एकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द यूनिटी ऑफ इंडिया. दैट्स फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. सेकंडली, यू कैन से इन अदर वर्ड्स यूनिटी ऑफ इंडिया. This was the strength of our country, unity of India. August 1947, India got freedom. After approximately 6 months, had not passed, one of the tragic incidents happened in India on 13 January 1948. Gandhi ji has been assassinated. 15 अगस्त, आप ईयर्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे. अगर 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम हुआ, उसके बाद 47 के बाद 48 पर आएंगे, 49 पर आएंगे, 50 पर आएंगे, उस पर्टिकुलर ईयर को हम ड्रॉप भी करेंगे और फिर मेजर चैलेंजेस को देखेंगे कि किस प्रकार के चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस. पहला लक्ष्य था भारत को आजाद कराना. Definitely we destined our target, but after getting the independence, there were so many challenges, internal challenges, which was a very, very prominent problem for our country, and it must be tackled as soon as possible because community level, जात के लेवल पर, मजाक के लेवल पर, भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भारत के अंदर थी और वो अब इंटरनल चैलेंजेस को फेस करना था. एक सफलता तो मिल गई कि इंग्लिशमैन, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए. नाउ वी हैव टू फोकस इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री. अब अपने देश की आंतरिक समस्याओं पर, तो पहली समस्या क्या थी कि किसी भी कीमत पर अनडिवाइडेड इंडिया, भारत का बंटवारा नहीं होगा. किसी भी कीमत पर भारत का बंटवारा नहीं होगा. अब इसको कह सकते हैं अनडिवाइडेड इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया. लेकिन ये पहली प्रॉब्लम भारत के साथ आई जिसको मेंटेन करना बहुत कठिन हो गया था, बहुत कठिन. और अल्टीमेटली आई एम वेरी सॉरी टू से इंडिया गॉट डिवीजन, भारत का बंटवारा हुआ. मैं यहां से चर्चा कर रहा था 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम में भारत को आजादी मिले करीब 6 महीना हुआ था. 6 मंथ हैड पास्ड और जबरदस्त ट्रेजेडी हुई 30 जनवरी 1948 गांधी जी की निर्मम हत्या कर दी गई. गांधी जी has been assassinated by नाथूराम गोडसे. आप सोच लीजिए, एक ऐसे टॉर्च बियरर जो पूरी आजादी में भारत को आजाद कराने में इतना महत्वपूर्ण रोल था. 1915 में वो साउथ अफ्रीका से आते हैं. 1915 से लेकर के 1947 तक अगर आप देखेंगे तो गांधी जी played a tremendous role, or just reference of every aspect में अगर आप देखेंगे हर ईयर में, चाहे 1915 की बात करें, आए 1916 की बात करें, 1920 की बात करें, 1923 की बात करें, 1925 की बात करें, 1927 की बात करें, 1929 की बात करें, 1924 में हिमसक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 1930 दांडी मार्च की बात करें, 1930, 31, 32, 30 गोलमेज राउंड कॉन्फ्रेंस की बात करें, हर तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर तक अपॉइंटमेंट होने तक महात्मा गांधी was the turning point of India. He was the hero of Indian national movement, associated maximum number of followers. बहुत ज्यादा. एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो
एक मत से उनके साथ था, उनके कदमों के साथ कदम मिला करके उनके दिशा निर्देश में भारत को आजाद कराने में पूरा सहयोग दिया। और मुझे लगता है कि वैचारिक मतभेद हो सकता है और स्वस्थ समाज में जहां ज्यादा बुद्धिमान लोगों को, जहां ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वहां वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निजी तौर पर गांधी जी एक ऐसे शख्सियत थे जिसको सभी लोग सम्मान करते थे, श्रद्धा और आदर के भाव से देखते थे, और उन्होंने भारत को आजाद कराने में जिस प्रकार का रोल किया, मैं समझता हूं कि वी विल बी इंडेप्टेड इन आवर होल लाइफ, हम आजीवन ऋणी रहेंगे। आई एम टॉकिंग दैट द फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत, 30 जनवरी 1948, अगर इस टाइम को आप देखेंगे 6 मंथ है पास्ट, आजादी का जश्न मनाए, आजादी का जश्न मनाए, अंग्रेज लोग छोड़ के गए, एक नए भारत का पुनर्जन्म हुआ और हम अपने आप को आजाद भारत के लोग कहलाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड 30 जनवरी 1948 दिस काइंड ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट टू प्लेस। एक ही बहुत हृदय विदारक घटना हुई। मिस्टर गांधी had been assassinated. It was just like earthquake in whole the country. पूरे भारत में भूचाल सा आ गया। At the hint of the radio, पंडित जवाहरलाल नेहरू announced, भारत का दीपक बुझ गया। The light of India off. We are living in complete darkness. भारत का दीपक बुझ गया और हम अंधेरे में रह रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणी पंडित जवाहरलाल नेहरू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम एड्रेस्ड नेशन कि भारत का चिराग बुझ गया है, हमको प्रकाश दिखाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं रहा। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन की पदवी जिसको दी गई थी, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन। और दिस इज माय ओपिनियन डियर। 1947 तक 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, 1947 तक किसी भी इंसिडेंट का अगर आप जिक्र करते हैं, यू आर इंटरेस्टेड टू डिस्क्राइब मेंशनिंग एनी काइंड ऑफ इवेंट, यू कैन नॉट अवॉइड महात्मा गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप 1915 से लेकर के चंपारण का आंदोलन से लेकर, मूवमेंट से लेकर के आप देखें 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट तक, गांधी जी के रोल को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ही हैड रजिस्टर्ड हिज नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, और ये बहुत बड़ी बात है। और 6 महीने के बाद, आजादी के 6 महीने बाद उनकी नृशंस हत्या की जाती है। नाथूराम गोडसे ये लगातार पढ़ते रहेंगे, 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में, 11th, 12th में। आई एम नॉट गोइंग टू इंडेट हियर, बट व्हाटएवर इन योर सिलेबस, आई जस्ट वांट टू टॉक इट डाउन अ ब्रीफ कंडीशन, जस्ट लाइक द स्प्रे। इन घटनाओं पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश हम करेंगे, कंटेंट से आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि जो जितना मैं यहाँ थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, दैट्स नॉट इंडेड, वही इंड नहीं है। आप 9th में इसको और विस्तार से देखेंगे, 10th में और विस्तार से देखेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट की गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे, इंटरनल चैलेंजेस को और वाइडली पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है, हम वहीं तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड सेट में किसी प्रकार का अनवांटेड इवेंट स्ट्राइक ना करे। तो फादर ऑफ नेशन जहां, और ये बहुत बड़ी घटना हुई, बहरहाल 30 जनवरी 1948, ये बहुत बड़ा शॉक न्यूज पूरे नेशन के लिए था। नाथूराम गोडसे, फादर ऑफ नेशन, 1915 से लेकर के इंडिया, लैंडिंग ऑन इंडिया 1915 from the South Africa, he contributed extremely on every corner of the fighting spirit of the Indian national movement, just getting the freedom of India. Absolutely disputeless person, no question can be raised about his personality, about his opinion, about his intention, no question can be raised. But I want to say the differences, ideological differences may be,
because this is natural. You will read about it a lot classes, coming classes. Second challenges of India, first time unity of India, भारत को आजाद कराने में बड़ी सफलता मिली, संघर्ष किया, इसके बारे में देखना। दूसरी बात जो होता है, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता को बरकरार रखने का बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट क्लियर हुआ कि 1947 में यूनिटी को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अंत में आप देखेंगे कि 1947 भारत पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र का बंटवारा हुआ। ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आजादी के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद या उसके पहले अगर उसको पूरा एनालाइज किया जाए तो अ लॉट ऑफ पेनफुल इवेंट्स आर कनेक्टेड। बहुत ज्यादा कीमत भारतीयों को चुकाना पड़ा था। इस प्रकार से आप इसको देखें तो सबसे बड़ी बात है माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स। पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई और इस सब की उत्पत्ति हुई कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, और पाकिस्तान में जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं पाकिस्तान में रहेंगे। फिर भी गांधी जी यहां बिल्कुल न्यूट्रल थे कि जो चाहे जहां रह सकता है। और परिणाम ये हुआ कि इतनी ज्यादा नरसंहार, एडल्ट्स, मैन, स्मॉलर किड्स, कुल मिलाकर के आप इतना समझेंगे कि इतना ज्यादा नरसंहार हुआ। नरसंहार वर्ड को यूज करना ठीक नहीं है, इतना ज्यादा कम्युनल राइट्स इसको बोल सकते हैं। ये वर्ड आपको लेंगे हम, कम्युनल राइट्स की बात करें, सांप्रदायिक दंगे इतना ज्यादा हुए कि जबरदस्ती हिंदुओं को मारा गया, मुस्लिमों को मारा गया, मतलब दोनों पक्ष का इतना नुकसान हुआ। और अंत में इन सब के नुकसान के बाद जितने बुजुर्ग लोग थे, बच्चे थे, भारत को हिला के रख दिया। Nobody dreamed that after getting independence of India like such situations we will have to face। ऐसी दशा से गुजरना पड़ेगा जहां तक हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के भारत की आजादी की बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी ऑफ द इंडिया, गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आफ्टर 1947। दिस वाज द डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा हुआ। तो सबसे बड़ी बात अगर आप टॉपिक से कोरिलेट करें तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो इंडियंस को फेस करना पड़ा, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ा, वो मेजर चैलेंजेस की बात करें आपका तो सबसे पहले अनडिवाइडेड इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया को बरकरार रखना था। और उसमें आप देखेंगे माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स, कम्युनिस्ट राइट्स लिया गया। और सबसे बड़ी बात होता है प्रिंसली स्टेट। यहां समझने की कोशिश करेंगे, प्रिंसली स्टेट्स जो हमारे देश के रजवाड़े हैं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की अलग मांग की, डिमांडेड इलॉजिकली दिस ओन इंडिपेंडेंस। उन्होंने रियासतों की मांग किया कि हम भारत से अलग रहेंगे। और इसमें मैं ब्रीफ से संक्षेप में बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी सरदार वल्लभ भाई अप्लाइड हिज मेंटल कैलिबर। यहां प्रिंसली स्टेट की बात अगर किया जाए, रियासतों का एकीकरण की बात किया जाए, जो अलग अलग स्टेट्स भारत से अलग रहना चाहते थे, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको मिलाने के लिए मैं समझता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल acted brilliantly with politically, democratically and socially and just showing the emotions before the India, he got complete success. Sardar Vallabh Bhai Patel, who was the first Home Minister of India। यहां देखते चलेंगे, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहली चुनौती। बहरहाल भारत पाकिस्तान दो कंट्री में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या हुई, कम्युनल राइट्स में दोनों तरफ से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ा। तीसरी प्रॉब्लम आई कि भारत के अंदर इंडिया इनसाइड इंटरनल प्रिंसली स्टेट्स की रियासत थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने रियासतों को डिस्टर्ब नहीं करना
करना चाहता हूं, हम अपने तरीके से अपना शासन चलाएंगे और इसको लेकर के भारत को जो विलय कराने की बात की गई, उसमें सरदार वल्लभ भाई के कंट्रीब्यूशन को कभी इतिहास भूलेगा नहीं। इस बात टैक्टिकली एक्सरसाइज्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। यही तक समझेंगे, इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। इसके बाद और चैलेंजेस क्या आती है? पावर्टी। अगर आप देखेंगे पावर्टी ह्यूजली गैप बिटवीन पीपल, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। आप समझ लीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1947-48। आज अगर आप देखें कि लगातार जो है कि इतने सालों के बाद कंडीशन आप देख रहे हैं, हम 1947-1948 की बात कर रहे हैं। पावर्टी वॉज इन हाई रैंक, बहुत जबरदस्त रूप से पावर्टी थी, बहुत जबरदस्त रूप से। हमारे संसाधन होने के बावजूद भी रिसोर्सेस, बिकॉज न्यूली आई गॉट इंडिपेंडेंट, इट वाज नॉट इजी टू सर्वाइव एज सून एज पॉसिबल। तो पावर्टी के रूप में जहां जो है गरीबी सबसे बड़ी चुनौती थी, और गरीबी को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट्स पूरा इस पे काम किए, और भारत के बीच में जो अमीरों और गरीबों की खाई थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। ये लंबी कहानी है। Such miracles cannot be done within some moment, overnight। रातों रात इन चीजों को दूर नहीं कर सकता है। तो केवल आपको ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ मेजर चैलेंज ऑफ इंडिया में आता। भारत की आजादी के बाद अगर देखें तो पहले अनडिवाइडेड इंडिया, दूसरा इंडिया की चर्चा मैंने किया। कंटेंट्स को आप देते चले जाएंगे। माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स बहुत जबरदस्त, पाकिस्तान जनरेटेड एंड कम्युनल राइट्स पे प्रिंसली स्टेट्स को लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन। इसके बाद फिर आपको पावर्टी गरीबी को दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात, और इसके बाद जो आपका था वो है एजुकेशन you can realize the level of education at that time when India got freedom 1947-48, 1951, 52, 53, 54. Maximum people citizens of India were illiterate। और ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब तक भारतीयों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, they don't have proper awareness the meaning of independence। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, पूरी तरह से जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, उनके एजुकेशन पर ध्यान दिया नहीं जाएगा, उनकी समझ में इंडिपेंडेंस क्या है, व्यक्तिगत अधिकार क्या है, लाइफ को डेवलपमेंट करने की थेरेपी क्या है, गवर्नमेंट का कोऑपरेशंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये बहुत बड़ा बैरियर था। दिस वाज द बिग बैरियर इन ऑनर ऑफ एरेडिकेट ऑफ द पॉवर्टी एंड एनहांसिंग द एजुकेशन। एरेडिकेट ऑफ द पॉवर्टी एंड एजुकेशन, दीज वर two major challenges of the independence of India, poverty, education। क्योंकि आपको इलेक्शन भी कराना था, और जब तक ये गरीबी आपकी दूर नहीं हो जाएगी, एजुकेशन सिस्टम को आप हाईली ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये सब ओवरनाइट नहीं हो सकता है। और तीसरा था एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार ये बहुत बड़ी समस्या थी। फ्रेंचाइज वोट देने का अधिकार, क्योंकि 1951 और 52 में इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, और इंडिया गॉट फ्रीडम 1947 फ्रॉम 47 to 51, 4 इयर्स के बाद इलेक्शन होना था 1951-52। एंड बिफोर कंडक्टिंग द इलेक्शन इट वाज द बिग चैलेंज बिफोर द इंडिपेंडेंट इंडिया। नंबर 1, अनडिवाइडेड इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया। इसके मैंने क्लासिफिकेशंस को यहां बताया, और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेजर चैलेंजेस थी वो पॉवर्टी थी, जबरदस्त पॉवर्टी थी, खाद्यान्न की कमी थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था, बिल्कुल आप देखेंगे उसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे, एक टाइम को उपवास करने की बात उन्होंने किया था। तो उस समय की स्थिति को देखें और आज की स्थिति को देखें तो आप कह सकते हैं कि इंडिया हैज डेवलप्ड कंप्लीटली सो पैरामाउंटेड पोजीशन, बहुत ज्यादा। अगर 1948 के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज 2022 के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यू विल रियलाइज अ वेरी हैप्पी दैट इंडिया चेंज्ड इटसेल्फ इन अ ट्रेमेंडस फॉर्म। बहुत ज्यादा, क्योंकि अंडर ह्यूज पॉपुलस कंट्री, बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के बाद इतने साल तक जो देश गुलाम रहे, स्लेवरी में रहे, और जिसकी भावनाओं को डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली जिसका इन्वॉल्वमेंट न रहा हो, और आजादी के बाद इन सब समस्याओं को फेस करना इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन था। तो टाइम का लगना स्वाभाविक था। इसलिए 1947 की बात अगर करें, 1948 में ट्रेटी हुई महात्मा गांधी
19 पॉवर्टी, पॉवर्टी को लिखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन, इसके बाद फ्रेंचाइज मताधिकार की बात आती है 1951-52 और यहाँ ये भी आप देख लेंगे बिकॉज दिस इज द इलेक्शन टाइम in India. So the first election commissioner of independent India, Mr. Shiv Kumar Sen. First election commissioner. Very important questions. First election commissioner of independent India, Mr. Shiv Kumar Sen. Mr. Shiv Kumar Sen. ये याद रखिएगा। इन्होंने बहुत चैलेंजिंग फॉर्म में इंडिया फ्रेंचाइज सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक ब्रिलियंट आइडिया को लेकर आया, पूरे देश का सर्वेक्षण किया, सर्वेच किया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको लग रही हैं कि पॉवर्टी ये देखने में लग रही है, लेकिन ये इंटरनली बहुत बड़ी चैलेंजेस थी और मुझे लगता है कि सालों दर सालों उस पर काम करने की जरूरत हुई, काम किया गया। लॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, दिनेंद्रा जी एंड सो मेनी अदर पर्सनालिटीज। तो अभी तक आप यही देखेंगे कि हम पॉवर्टी की बात करेंगे। नंबर 1 पॉवर्टी, इस तरीके से वो हमारा चैलेंज था। दूसरा था एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूवमेंट करना, मैक्सिमम पीपल्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेर इलिटरेट, और ये बहुत बड़ी समस्या थी जब तक उसको एजुकेशन में एक्सपर्टनेस को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। और फिर तीसरी चुनौती थी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई करने के लिए इलेक्शन का होना जरूरी है। और इलेक्शन अगर होगा तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात भी करेंगे। उसके पहले उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा थोड़ी सी पहले हम कर चुके हैं, आवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एनसीईआरटी के कंटेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले था कि मेजर चैलेंजेस ऑफ independence India. I focused on this topic particular today in explanation form. Second part, which is majorly mentioned in NCERT, that's the very important fact, the written constitution of India. I have discussed it already. 9 December 1946, 26 November 1949, and then 26 January 1950 came into force. 26 January 1950 came into face over the constitution और इलेक्शन कब कराया गया 1951-52। तो कड़ी से अगर देखेंगे कि 1947 भारत को आजादी मिली, 1948 गांधी जी की हत्या हुई, 1949, 51-52 में डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने इन द ऑनर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इट वाज कंपल्सरी टू टेक द इलेक्शन इन इंडिया, बट बिफोर इट देयर वर सो मेनी चैलेंजेस, और जब तक इन चैलेंजेस को एरेडिकेट नहीं किया जाता डेमोक्रेटिक रूप में इलेक्शन कराना संभव नहीं था, बिल्कुल संभव नहीं था। और उसके बाद फिर थोड़ा सा बैक आप करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कराने के लिए अपना संविधान होना बहुत जरूरी है। आई हैव टॉक्ड ह्यूजली इन प्रीवियस क्लासेस। 26 जनवरी 1950 आई हैव स्टार्टेड 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 2 years 11 months 18 days, 3 साल का पूरा समय लगा था 1946 लेकर के 26 जनवरी 1950 तक। किस प्रकार से 300+ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भीमराव अंबेडकर, a lot of genius persons scripted our Indian Constitution। तो 1947, 1946, 47 की चर्चा मैं कर चुका हूं। फिर कड़ी से आप कड़ी जोड़ेंगे 1948, 49, 50, 1951, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 the Constitution of India came into power। और ये भारत, और उसके पहले थोड़ी चर्चा हम कर लेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 ये पूरी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ की जर्नी 19 दिसंबर 1946 की जर्नी कैसे 1950 तक हुआ है, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक, देयर आर अ लॉट ऑफ कंटेंट्स in this chapter India after independence। there are so many similar topics in previous condition। बहुत ज्यादा कंटेंट्स आपको इसमें मिलेंगे और नथिंग इज सेपरेट। वुमेन्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, वुमेन्स एजुकेशन की बात करेंगे, इस सब की चर्चा हम करेंगे। और फिलहाल आज हम देखेंगे किस तरीके से एक बार जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं। 9 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया। 1947 में भारत को आजादी मिली। 1948 में ट्रेजिक डिमाइस मिस्टर
महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, बहुत बड़ी चीज हुआ। उसके बाद फिर एक चैलेंजिंग होता है डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। उसके बाद फिर सेकंड प्रॉब्लम आई कम्युनल राइट्स, जबरदस्त दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम को लेकर के हुआ और उसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। उसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम की बात करें तो प्रिंसली स्टेट जो हमारे रजवाड़े थे वो भी भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, उनको लेकर के इसको बोलते हैं भारत का एकीकरण, यूनिटी ऑफ इंडिया, मिलाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल। वहां तक ये और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है और फिर हम चर्चा करेंगे कि 1951-52 में किस प्रकार से इलेक्शन होता है और इलेक्शन कराने में जो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो मिस्टर सुशील कुमार सेन थे। 1951-52 के इलेक्शन होने के बाद फिर आगे हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे बने। उसके बाद फिर उनके टेन्योर को देखेंगे, फिर हम 60 से 70 के डिकेड में आएंगे, 70 से 80 के डिकेड में आएंगे, 80 से 90 डिकेड में आएंगे। एक जनरल सर्वे आप करेंगे तो आपको एक आइडिया, आपके माइंड से एक आइडिया आएगा वास्तव में 1947 से लेकर के 60 तक, देन 70, देन 80, देन 90 टिल टुडे भारत, इंडिया हैज पोजीशन इटसेल्फ। तो एक सर्वे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जम्मू कश्मीर की समस्याओं को देखेंगे, लद्दाख इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप इसको पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, नथिंग इज न्यू, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के ऑनरेबल प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक देखेंगे। शुरू के नेहरू जी का कार्यकाल, देन लाल बहादुर शास्त्री, देन इंदिरा जी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह चौधरी, then VP Singh, Chandrasekhar, then before the Rajiv Gandhi, Narasimha Rao, and then Manmohan Singh, then Honorable Narendra Modi। तो ये सब देखेंगे कि इनके कार्यकाल में भारत का डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने अपनी पहचान कैसे बनाई थी। जब घर की समस्याओं से आप जूझते रहेंगे ना, जब तक घर की समस्या आती है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड, टू काइंड ऑफ थिंक फेमस ऑफ द इंटरनेशनल लेवल। और आंतरिक समस्याओं को जूझने के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी इमेज को बनाया। और ये बनाया कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, और इसकी चर्चा हम अपने वीडियो में करेंगे। और इसके वर्जनिंग को लिख लीजिएगा, मेन कंटेंट्स को लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट फिर मुलाकात आपसे होगी। हैव ए गुड डे।